Hello everyone. This is Sandeep Vishna and you are watching your beautiful the channel's Physics Tricks. So now today I am going to start about the chapter electrostat, and this is the chapter first of class 12 physics. So let's start the unit electrostatics. So now here electromagnetism. So it consists of the two parts. First is the electrostatics. I have already told electrostatics. So what is the meaning of it? What is the difference between here are the two kind of the electromagnetism? First is the electrostatic, second is electrodynamics. Electrodynamics. So here electrostatic means when charge is at rest. So we have to study the rest. Charge is at rest. So if we study about the charge when it is at rest, then it is under the electrostatic. And charge in motion, if charge in motion, then we need to study about the electrodynamics. Dynamics means motion. So under the electrostatic there are so many chapters. First is the Gauss law. We can study about the Gauss theorem or the Gauss law under this chapter, and electric potential, electric field and the charges also, and electric potential we have to study, and third is the capacitances and electric charge and field. It is also the first chapter. It is second, it is third, and it is fourth. And first is the electric charges and field. So it is first chapter, this is second, third, fourth. So these are the four chapters which are we can study under the electrostatics. So now here in electrodynamics, when the charge is in motion, then we can study about the current electricity in physics in class 12th. It is the chapter current electricity. Second is the magnetism. Magnetism we can study, and EMI means electromagnetic induction, AC. So these are the chapter under the electrodynamic. So there are two kind of the unit. This is unit first under these chapter, unit second under these chapter, right? So here we need to study about the electrostatics and electrodynamics. So come to the very first chapter, and this is the name of the very first chapter, electric charges and fields. So come to this chapter, right? So take the screenshot if you want, and now I am going to ref. So here talk about this electric charges and field. So now first heading, first chapter is the, I am going to start very first chapter, and the very first chapter is the electric charges and field. So here chapter is electric charges and fields. It is the name of the chapter. So electric charges and fields. So talk about the electric charge. So what is the electric charge? What is the meaning of it? What is the definition of the electric charge? So what is the right definition of it? So electric charge is, क्या होता है इसकी definition? अगर if we take a scale, and if we take a comb or the scale and rub with the hair, so and place near the piece of the paper, then what happens? So if we rub a comb or the scale, glass scale, and place near the piece of the paper, then there is the attraction. So piece of paper attracts, scale attracts the piece of paper. So due to the charging also. So what is the definition of it? So right definition is electric charge, it is the basic property of matter. It is the basic property of the matter that causes it to experience
experiences a force when kept in electric or magnetic field. So it is one kind of the property. So here it is the one kind of the property. So it is one kind of the property. Other name of the property we can say characteristics. Whether we can say property or the characteristics. So electric charge is one kind of the property of the matter. Here I am using the term is the matter. So you know what is the matter? Which occupies space and has mass is said to be the matter, right? Which occupies space and has mass is said to be the matter. So it is the basic property of matter that causes it to experiences a force when kept in electric or magnetic field. It means electricity यानी जहां पर करंट लग रहा होगा या चार्ज एग्जिट कर रहा होगा लेकिन करंट लग रहा होगा, राइट? एंड मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ और साउथ पोल होता है या मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, आगे आप लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे. और इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेम ऑफ द चैप्टर. तो यहाँ पे जो फील्ड डेवलप होता है उस फील्ड में जो फोर्स डेवलप होता है वो उस फोर्स के कारण जो प्रॉपर्टी शो करता है मैटर के, दिस इज सेड टू बी द इलेक्ट्रिक चार्ज. क्लियर? एंड टाइप्स ऑफ द चार्जेस. So there are the two types of the charges. Types of charges. First is the positive charge. Positive plus positive stand for proton, and another is the negative charge. Negative for इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ द नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है. चार्ज की वैल्यू क्या होती है? चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है? व्हाट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन? इट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. सो कूलम इज द यूनिट. सो हियर it is the charge. What is the value of the charge of an electron? 1.6 10⁻⁻19 coulomb. So here नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव लगाओगे, वैल्यू ऑफ द चार्ज इज सेम वेदर वी टेक द प्रोटॉन और वी टेक द इलेक्ट्रॉन. सो इट इज द वैल्यू, राइट? सो नाउ हियर यूनिट ऑफ द चार्ज. यूनिट ऑफ द चार्ज इज यहां से समझ में आ रहा है. यूनिट एसआई यूनिट चार्ज की क्या होगी? एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलॉम. SI unit of the charge is coulomb. Coulomb में small c लोगे. Name of the scientist Auguste D. Coulomb is the name of the scientist. Auguste D. Coulomb is the name of the scientist. So here small letter. Say name of the scientist में कभी भी यूनिट लिखी जाती है always we use the small letter. तो coulomb में small letter लोगे. अब if we use the short form तो ये आपका one single लोगे तो it is capital C. तो capital C is the unit of the coulomb. So here I am using the term C. C is the positive charge. It is positive charge. Positive charge of the proton is this one. So here C is the unit of the charge. It is coulomb. So small c लोगे और capital C, and here small c is the symbol of the unit of the charge. So charge of electron is this one and charge on proton is this one. So here proton for positive, electron for negative. SI unit of it is this one, right? So small letter हमेशा लिया जाएगा जब यूनिट लोगे, बट शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएशन लिखोगे then we can use the capital letter, right? So it is the definition and it is the type. So it is very simple. So note down if you want. Now I am going to rough. Next is conductor and insulator and semiconductor. So you know what are the conductor, what are the, बहुत सिंपल है, पहले भी आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा. कंडक्टर्स बहुत इजी गोइंग है, बहुत इजी अभी चल रहा है. कंडक्टर क्या होता है? वेयर करंट कैन पास. करंट कैन पास, जहां पे करंट पास होती है, इट इज सेड टू बी द कंडक्टर. और इंसुलेटर क्या होता है? इट इज वेरी सिंपल. इंसुलेटर करंट कैन नॉट पास, जहां पे करंट क्या हो रही है? पास नहीं हो रही है. कैन नॉट पास द सब्सटेंस वेयर करंट कैन नॉट पास. क्लियर? तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी.
Iron, it is very simple. Iron, human body, etc. Right? Now, here, insulator में example, wood, rubber, plastic, you know very well, it is very simple. Wood, rubber, प्लास्टिक एक्सेट्रा एंड अदर टर्म आएगा सेमी कंडक्टर. तो ये सेमी कंडक्टर क्या होता है? व्हाट इज द सेमी कंडक्टर? सेमी कंडक्टर वेयर इन दोनों की प्रॉपर्टी थोड़ी सी मिक्स वाली हो, यानी दोनों की प्रॉपर्टी को थोड़ा थोड़ा फॉलो कर रहा है. तो द, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इंटरमीडिएट. It is intermediate between the conductor and insulator. कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी होगी, उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर. हेयर एग्जाम्पल इज द जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, जी एक्सेट्रा. ये आपका जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, दीज आर द सेमी कंडक्टर. आगे आप लोग फिजिक्स के लास्ट चैप्टर में भी एक चैप्टर है पूरा सेमी कंडक्टर का, फिजिक्स में क्लास 12 में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. तो उसमें करंट और पोटेंशियल का ग्राफ करके सेमी कंडक्टर को पूरा वास्ट एक्सप्लेन किया गया. अभी तो आप सिर्फ डेफिनेशन कर सकते हो कि दोनों की प्रॉपर्टी का बीच का पार्ट हो. इट इज दिस वन, राइट? So here this is the chart. You have got the definition of the electric charge, types of the electric charge, conductor, insulator, and the semiconductor. So if you want, then note down. Current पास हो रही, करंट नहीं पास हो रही, यहाँ दोनों की प्रॉपर्टी है. Now I am going to the next will be basic properties of an electric charge. What is the basic property? Basic property क्या होगी? Now heading is basic properties of electric charge. So basic property of the electric charge, first is the conservation of charge. So what is the conservation of the charge? So here is the conservation of the charge. So what is the charge can neither be created nor be destroyed. It can be transferred. चार्ज को ट्रांसफर तो कर सकते हो लेकिन फिनिश नहीं कर सकते हो. सो वी कांट फिनिश. ह्यूमन बॉडी फिनिश हो जाती है, डेथ हो जाती है, डेड एनिमल्स, डेड प्लांट. बट यहाँ पे चार्ज को डेथ नहीं कर सकते हो, खत्म नहीं हो सकता. बट वो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा और इट कैन बी द ट्रांसफर्ड, राइट? And the second point is the total charge of a body. The total charge of an isolated system is constant. Total charge of an isolated system is constant. Yes, isolated लिखा हुआ है. Isolated का मतलब क्या है? Isolated, अलग थलग. यानी कि बिल्कुल अलग थलग. जो क्लासरूम में कोई बैठा है, पढ़ा रहा है, तो अलग बैठे हो, बिल्कुल कोई मतलब नहीं अपने फ्रेंड से. सो अलग थलग नहीं, आइसोलेटेड है वो बहुत. तो इसका मतलब आइसोलेटेड. यहाँ पे हेयर आई एम यूजिंग द टर्म आइसोलेटेड. द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड, यानी कि एक सिस्टम है. सिस्टम, बॉडी नहीं, सिस्टम. सिस्टम किसको बोलते हैं? सिस्टम वी कैन
से आई जस्ट गिव द एग्जांपल ऑफ द क्लासरूम. क्लास में क्या होता है, आपकी 4 वॉल्स होती हैं, 1 2 3 4 वॉल्स, राइट, एंड ऊपर अपर सरफेस एंड दिस इज द फ्लोर. तो 6 सरफेसेस के अंदर क्या हुआ, एक पूरी क्लासरूम हो गई. हाउ मेनी सरफेसेस ऑफ द क्लासरूम कंसिस्ट ऑफ 6 सरफेसेस. 6 सरफेसेस के अंदर क्या आ रहा है, सीट्स आ रही है, डेस्क आ रही है, चौक आ रही है, तो जितने भी फैंस आ रहे हैं, तो ये सब सिस्टम के अंदर है. सिस्टम क्या हो गया आपका, एक बॉक्स बन गया या एक रूम बन गया, सरफेसेस हो गई. तो दिस इज द सिस्टम. तो उस अलग सरफेस की आपका एक क्लासरूम है और बगल में दूसरा क्लासरूम है, तो 2 सिस्टम हो गए. वन सिस्टम इज योर क्लासरूम, सेकंड इज योर अनदर क्लासरूम. सो हियर इट इज सेड टू बी द अनदर मींस अलग से एक क्लासरूम के अंदर कुछ भी है. ठीक है, तो दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम. सो इसका एक एग्जांपल करके है कि एग्जांपल. So through example I am going to explain about the isolated system. ये एक सिस्टम हो गया, ये एक बॉक्स हो गया. इसमें अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है. सपोज दिस इज 4 कूलम, 4 कूलम चार्ज रखा गया है. यहां पे दिस इज -1 कूलम एंड दिस इज +3 कूलम. ये चार्ज रखा है, दिस इज सिस्टम ए. ये पूरा बॉक्स के अंदर हो गया, सिस्टम ए के अंदर ये चार्ज है. ये आइसोलेटेड हो गया. आइसोलेटेड रिमेन कांस्टेंट. क्या लिखा है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट. सपोज देयर इज द अनदर सिस्टम. यहां पे अनदर सिस्टम हो गया एंड अनदर सिस्टम इज सपोज दिस इज 5 कूलम चार्ज. ये 5 कूलम हो गया. दिस इज +5. सपोज दिस इज +5 कूलम चार्ज एंड देयर इज द 1 कूलम चार्ज +1 कूलम. और यहां पर अगर मान लो क्या है, x कूलम चार्ज है, x कूलम. दिस इज x कूलम, x कूलम चार्ज, राइट. सो दिस इज x कूलम चार्ज. तो क्या होगा, दिस इज सिस्टम ए. अकॉर्डिंग टू दिस वन टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज द कांस्टेंट. अगर आप इसमें क्या करोगे, ये वाला आपने बॉक्स लिया, इसको आपने हिलाया, बॉक्स ए और सिस्टम ए को गड़गड़ गड़गड़ किया, तो ये यहां पर इतना आया. ये भी अगर हिलाने पे ये इसमें कन्वर्ट हो गया इस तरह से, तो है तो उतना ही चार्ज ना. टोटल चार्ज इज द कांस्टेंट, टोटल चार्ज रिमेन द कांस्टेंट. इसको आप करके इसको हिलाओगे, इसको यहां पे रखोगे, तो ये बी बन गया. ए से बी में कन्वर्ट हो गया, ये ए से बी में कन्वर्ट हो गया आफ्टर शेकिंग इट. ठीक है, इफ वी शेक अ सिस्टम है, सिस्टम ए को आपने शेक किया, बुड़ू बुड़ू उसको यहां पे रखा, ये पता है ये एक्स चार्ज नहीं मिला, तो यानी कि जितना टोटल चार्ज इसमें उतना टोटल चार्ज इसमें होगा. तो व्हाट शुड बी द वैल्यू. तो टोटल चार्ज इसमें कितना है, 4 + 4 कूलम प्लस -1 कूलम. सो हियर +4 कूलम प्लस -1 कूलम प्लस सॉल्व कर लेंगे +3 कूलम इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट. तो इसका टोटल चार्ज, इसका अलग अलग सिस्टम है, इसको अगर हिलाओगे गुल 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 करके तो इसमें जाएगा, तो ये दोनों क्या होगा, सेम होगा. ठीक है, तो ये क्या होगा, +5 कूलम प्लस 1 कूलम प्लस x कूलम. x कूलम, x c stand for the coulomb. तो 4 - 1 + 3 is equals to 5 + 1 + x. So value will be 3 + 3 is equals to 6 + x. So x will be 6 - 6, it is 0. So 0 कूलम is the answer. कि कोई भी चार्ज नहीं आया, तो उससे आप वैल्यू निकाल सकते हो, राइट. इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इसमें सिस्टम में, दूसरे सिस्टम में चार्ज निकालो, देन यू कैन फाइंड द चार्ज, राइट. तो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट. तो इसको जब आपने ऐसे किया, ये इस फॉर्म में आ गया, ये इनिशियल पोजीशन है, बाद में आपने शेक किया, शेक करने के बाद ये पोजीशन है, बट टोटल चार्ज कांस्टेंट है. तो इसका सम ऑफ दिस सम ऑफ इक्वल करके यू कैन गेट दिस वैल्यू. So it is the conservation of the charge. You have got the two property. First is the charge can neither be created nor be destroyed. It can be converted. It can be transferred. जिससे ट्रांसफर हो जाएगा. The total charge of an isolated system is constant. Screenshot ले लो और नोट कर लो. Now ये नोट हो गया, जिसके बाद इसको रफ कर दो. तो this is the conservation of the charge. Now come to the another property. Another property is the, कौन सी प्रॉपर्टी होगी, बेसिक प्रॉपर्टी का आपका क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज. सेकंड इज द सेकंड बेसिक प्रॉपर्टी इज
फर्स्ट इज द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, सेकंड इज द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज में वेरी फर्स्ट पॉइंट जो ध्यान रखना है, द स्मॉलेस्ट चार्ज कैन exist independently. मतलब क्या हो गया, सबसे पहले तो ये समझते कि व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज. क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होगा, क्वांटाइज्ड मीन्स फिक्स्ड अमाउंट. क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स्ड अमाउंट है. क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज मतलब इसको बहुत स्मॉलेस्ट में इसके टुकड़े नहीं कर सकते, फिक्स्ड अमाउंट होता है. इन द सेंस सपोज आपके पास एक मार्कर है तो ऐसे ही क्या हो जाएगा कि दूसरा मार्कर हो सकता है, राइट. तो ये क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया, सेम हो गया कि सेम ऐसे हो जाए, लेकिन इसको क्या करते थे, काट नहीं सकते, यानी इसको और ज्यादा सब डिवाइड नहीं कर सकते हो. तो दिस इज सेड टू बी द क्वांटाइज्ड, कि इसका एक फिक्स्ड अमाउंट होता है. तो इसमें चार्ज में क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी. सेकंड बेसिक प्रॉपर्टी, फर्स्ट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, सेकंड इज द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज. सो हियर हेडिंग इज क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज. स्मॉलेस्ट चार्ज कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. इसका मतलब इसका जो चार्ज है वो इंडिपेंडेंट होता है. अब आप कहोगे ये चार्ज इंडिपेंडेंट क्या होता है, यानी अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन होता है. इफ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन यू नो वेरी वेल, -1.6 10 -19 कूलम, इट इज द इलेक्ट्रॉन. तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है. इंडिपेंडेंट का मतलब ये फ्री होके निकल सकता है, कहीं भी जा सकता है. बट अगर बात करते हैं जैसे क्वार्ट्ज की बात करते हैं, क्वार्ट्ज इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. जैसे 1/3 ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड 2/3 ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो ये 2/3 और 1/3 क्या है, 2/3, सॉरी दिस इज 2/3. 1/3 which is smallest than the charge of an electron. It is very smallest, इससे भी smallest है, लेकिन ये क्या है, ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है. इट इज नॉट इंडिपेंडेंट. तो यहां पे बात करते हैं कि द स्मॉलेस्ट चार्ज कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. तो इंडिपेंडेंटली क्या हुआ, क्वार्ट्ज 1/3 2/3 ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंडेंट है, क्योंकि वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस के बहुत स्मॉलेस्ट पार्ट में होता है. डिपेंडेंटली दैट इज इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 1/3 2/3 ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट इज वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट, उसको नहीं लेते. तो यहाँ पे क्या होगा, द स्मॉलेस्ट चार्ज कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दैट इज इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज E, राइट. इट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज में. सेकंड क्या हो जाएगा, द चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल of charge on electron. Charge is equal to the integral multiple of the charge of an electron. तो this is the charge हो गया, integral multiple n हो गया charge of an electron. So it is, we can use plus minus, where n is the number of integer. n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ द इंटीजर होगा. इट इज सेड टू बी द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल. तो मल्टीपल चार्ज ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल और चार्ज ऑफ मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ, ये भी कह सकते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल,
वेदर देखिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिखा चार्ज ऑफ एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, बात एक ही है। फंडामेंटल पार्टिकल कहीं लिखा होता है, फंडामेंटल पार्टिकल और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा होता है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के कौन सी चीज बराबर होती है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। सो हियर ये हो गया फंडामेंटल। तो चारों में से कोई भी टर्म यूज कर सकते हो। एलिमेंट्री पार्टिकल स्मॉलेस्ट, फंडामेंटल पार्टिकल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन। So here total charge is equals to product of number of the integers and number of the integer, charge of the elementary charge particle, elementary particle, charge of electron, charge of fundamental particle. So it is the formula of the quantization of the particle. Quantization में you have got the two concept. First is the smallest charge can exist independently. Charge of electron independently होता है, ठीक है। एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, इट इज द एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट, नोट डाउन। सो इट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, क्लियर। So you have got the two property. First is the conservation of the charge and second is the basic property quantization of the charge. Quantize करना, quantize का मतलब क्या होता है कि इसको सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं। So how we can not subdivide? So what is the process? So I am just giving the example. Example is, question is, can a charge of, can a charge of 3.2 into 10 raised to the power minus 19 coulomb can be given to a body? So it is the question, can a charge of this 3 into 10 to the minus 19 be given to a body? So answer is we know that Q is equals to NE, where Q is the 3 into 10 raised to the power minus 19 coulomb, N is the number of integer, n is the number of the integer, is the charge of the electron or elementary charge. So it is charge on electron. So here Q is 3.2 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. This is n into 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. So n is equals to 3.2 into 10 raised to the power minus 19 coulomb and 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. So we can cancel it. So n will be 3.2 upon 1.6. So there will be the 2. So n will be, n is equals to 2. Number of the integer is 2. तो n क्या हो जाएगा? This is yes. So yes आंसर क्यों हो गया? Because here number of the integer कितना? n is the number of the integer, integral multiple. So यहाँ पे अगर आता 1.9 सपोज आंसर आता तो क्या होता? रॉन्ग होता, बिकॉज ये सब डिवाइड नहीं हुआ। जैसे मैंने बताया था 1 मार्कर है, उसके बाद क्या हो गया? यू हैव गॉट द अनदर मार्कर। तो इसी तरह से दिस इज द n, तो ये पॉइंट में आ गया 1.9 और ये आंसर नहीं हुआ, नो में आएगा। और अगर 2.1 है, दिस इज ऑल्सो नो। तो इंटीजर फॉर्म में हो गया, तो दिस इज द कंप्लीट इंटीजर। तो ये क्या हो गया? यहाँ आंसर इज यस। सो यस आंसर आ गया। कैन अ चार्ज ऑफ अ बॉडी बी गिवन टू अ बॉडी? सो दिस इज यस बिकॉज दिस इज द इंटीजर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। Question is this: how can we
ignore the quantization of charge when dealing with macroscopic, that is very large scale. So question is this: how can one ignore the quantization of the charge? So quantization of the charge को अगर when dealing with the macroscopic, that is very large scale. So how can quantization of the charge, how can one ignore with the quantization of the charge when dealing with the macroscopic, that is very large scale. तो quantization of the charge को क्यों इग्नोर करते हैं? इट इज वेरी लार्ज स्केल. मैक्रोस्कोपिक मीन्स लार्ज चार्ज. बट क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज में क्या होगा? आंसर क्या है इसका? वी नो Q is equals to NE, where E is equals to very small charge, which is microscopic, which is माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक डिफरेंस है ना. माइक्रोस्कोपिक बहुत बड़ा चार्ज, पर यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी है? वैल्यू ऑफ द E इज 1.6 10 -19 तो जीरो से भी छोटा है ना. -19 it is divisible by 10 to the power 19, 10 raised to the power plus 19. So it is very less than 0. So it is microscopic. So here I am using the quantization of the charge. क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज क्या होगा? इसमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या जो भी है उसमें बहुत स्मॉलेस्ट यूज हो रहा है, इसलिए व्हीकल. तो ये इसका आंसर दिस वन इज द आंसर, और वेयर इज द दिस वन. सो वी कैन इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ द. तो हम इसको क्या करेंगे? क्वांटाइजेशन मैक्रो का मतलब लार्ज चार्ज के लिए, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक वी नीड द बिग चार्ज. मैक्रोस्कोपिक में बिग चार्ज यूज करते हैं, इसलिए आंसर ये होगा. क्लियर? सो इट इज द value of it. Now third basic property, you have got the conservation of the charge, quantization of the charge, and third property is very easy property. It is number third property, addition of charge. चार्ज को एडिट करना. एडिट करने का मतलब कि सपोज दिस इज अ सिस्टम, यहाँ पे दिस इज पॉइंट ए, this is point B, this is point C, ... this is point N. यहाँ पे चार्ज हो गया, this is Q1, this is minus Q2, this is minus Q3, this is plus Qn. So total charge of a system, this is the system. ये सिस्टम हो गया. Now इसमें टोटल चार्ज क्या होगा? Where Q is the total charge. Total charge of that system is Q1 प्लस बी पे चार्ज कितना? -Q2 प्लस -Q3 प्लस Qn. सो कैपिटल Q Q1 -Q2 -Q3 प्लस Qn. सो वी कैन से दिस वन. सो इट इज द वैल्यू. तो यहाँ पे क्या हो गया? सम ऑफ द चार्जेस आ गया. सम ऑफ द चार्जेस, सम का मतलब हियर आई एम यूजिंग पॉजिटिव चार्ज. देखिए यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया. तो ये प्लस का मतलब कि जितने भी टोटल चार्ज है, वेयर क्यू इज द, वेयर कैपिटल क्यू इज द टोटल चार्ज. बहुत सिंपल सा है ये टोटल चार्ज, ये सबसे सिंपल है टोटल चार्ज. सो टोटल चार्ज की वैल्यू जो अंदर वाले चार्ज है उसको प्लस कर लोगे, तो नाम से ही समझ में आ रहा है एडिशन ऑफ द चार्ज. तो वो टोटल चार्ज क्या होगा? सम ऑफ द ऑल द चार्जेस इनसाइड द सिस्टम. तो क्या होगा? द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम
is equal to the sum of the charges inside the system. बस यही है आपका क्या कंजर्वेशन ऑफ द, कि अंदर के जितने चार्जेस है उसको प्लस कर दो, इट इज द टोटल चार्ज. सो दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज. ये थ्री प्रॉपर्टीज हो गई. एडिशन ऑफ द चार्जेस, इट इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी. नाउ आई एम गोइंग टू रब. स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो. सो इट इज द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज. कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज इज द हेडिंग. सो इट इज द नोट डाउन. Now you have got the conservation of the chart, so it is the heading, right? Screenshot लेना है, screenshot ले लो, कॉपी पेन करके नोट करते जाइए. Now here is the value. Now next is the ways to charge. Ways to charge मतलब क्या हो गया? Next heading क्या है? Next heading is the ways to charge. वेज टू चार्ज. कौन कौन से वेज होते हैं, जिस तरीके, कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे चार्ज कर सकते हैं बॉडी में. फर्स्ट इज द चार्जिंग बाय कंडक्शन. हेडिंग इज द चार्जिंग बाय कंडक्शन. चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब होता है टचिंग करना. टचिंग. चार्जिंग बाय कंडक्शन इज द टचिंग. कि अगर दो कंडक्टर है उसको क्या कर रहा हो? टच करा रहा हो, छू रहा हो बिल्कुल, तब कंडक्शन का यूज होता है. सपोज यहां पे आपने कंडक्टर ले लिया, दिस इज ए, क्लियर. दिस इज अनदर कंडक्टर ऑफ द सेम साइज और द आइडेंटिकल, दिस इज बी. बहुत ध्यान से समझिए, मैंने अभी आपको एक टर्म यूज किया आइडेंटिकल. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडेंटिकल? आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल सेम साइज, शेप and mass. So here I am using the term identical. Identical का मतलब कि अगर ये A कंडक्टर है, कंडक्टर इसमें करंट फ्लो हो रही है, चार्ज हो रहा है, दिस इज द कंडक्टर A और कंडक्टर B, बोथ आर आइडेंटिकल. Here I am using the term identical. आइडेंटिकल है, बोथ आर आइडेंटिकल. आइडेंटिकल का मतलब सेम साइज के हो, कि इसका दोनों का मास सेम होगा, दोनों की रेडियस सेम होगी, दोनों का डायमेंशन सेम होगा, हर चीज सेम होगी. तो दिस इज सेड टू बी द आइडेंटिकल. सेम साइज एंड शेप एंड द मास सेम है. सो दिस इज द, अगर यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है. अब इसको क्या कर रहा हूं? ये अनचार्ज कंडक्टर है. अनचार्ज का मतलब दिस इज न्यूट्रल. न्यूट्रल का मतलब कोई भी चार्ज नहीं है. इसमें माइनस चार्ज है. 1 2 3 4. अब जैसे ही क्या करोगे? इसको टच करोगे, यहां पे देखो टचिंग बन गया है, कि इसको अगर आप लोग टच करते हो, इफ यू टच, टचिंग लिख दिया, राइट, टचिंग. आप इसको टच कराते हो, तो जैसे ही इसको टच करा के हटाओगे तो यहां पे तो कोई चार्ज नहीं है, एंड हियर इज द नेगेटिव चार्ज. तो ये इक्वली शेयर्ड हो जाता है, कि जितने चार्ज इसमें उतने ही चार्ज इसमें होने चाहिए ऑन टचिंग, आफ्टर टचिंग. तो क्या होगा? टचिंग में आपने इसको टच कराया, यहां टचिंग कर दो, यहाँ पे दिस इज कंडक्टर बी, दिस इज कंडक्टर बी, आपने इसको टच कराया, नाउ दिस इज टचिंग. तो ए एंड बी को क्या हो रहा है? टच हो रहा है. दिस इज ए, दिस इज बी. जैसे ही टच होगा तो यहां पे क्या होगा? इक्वली शेयर्ड हो जाएगा. इक्वली शेयर्ड हो जाए, कि जितने रहते 50-50 हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे. तो ये हो गया आपका टचिंग. जैसे आपका एक एग्जांपल है चार्जिंग बाय कंडक्शन. देयर इज वन एग्जांपल.
Example is this, suppose this is conductor A which has the Q charge and this is conductor B which has the zero charge, zero uncharged conductor है. So after touching what will be the value of charge on A and B. A और B के बीच में A और B पर कौन सा चार्ज होगा टच करने के बाद, बताइए कैसे होगा. स्क्रीनशॉट लेना ले लो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा. दिस इज सॉल्यूशन, आंसर और द सॉल्यूशन ऑफ इट. तो आपने यहाँ पे Q0 हो गया, दिस इज, इसको टच करा के हटाओगे तो टच करा के हटाएंगे तो इक्वली शेयर्ड हो जाएगा. तो आफ्टर टचिंग बताइए क्या होगा. स्क्रीनशॉट ले लो, इधर स्पेस नहीं इधर करना है. स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट आफ्टर टचिंग. नाउ आई एम गोइंग टू रफ. नोट कर लो, इतना नोट करो. सो दोनों को टच करके हटा रहे, नोट करो इसको. यहां पे स्पेस नहीं, आगे करना है. वेज टू चार्जिंग बाय कंडक्शन. सो आई एम गोइंग टू रफ. Touching, it is identical shape and size. It is this one. Write this, and it is the example of it. Now, इक्वली शेयर्ड होंगे तो क्या बनेगा देखिए. आफ्टर टचिंग, after touching is it is a Q charge, it is B 0, it is uncharged. टचिंग करोगे, टचिंग इज दिस वन. here is the touching A and B. इक्वली शेयर्ड Q प्लस 0 अपॉन 2 Q प्लस 0, दोनों को जोड़ के उसका मीन वैल्यू निकाल लेंगे. सो इट इज वैल्यू ऑफ इट इज Q/2, वैल्यू ऑफ इट इज Q/2. इट इज आंसर. तो इक्वली शेयर्ड कितना हो गया Q/2 एंड Q/2 आफ्टर टचिंग. सो इट इज द चार्जिंग बाय कंडक्शन. क्लियर. सो नाउ आई एम गोइंग टू रफ. So here it is the value. Now next is the charging by induction. Charging by induction में क्या होगा, इसको रफ कर दूं. Right? Done. So charging by induction. Base to charge में first is the charging by conduction and second will be the charging by induction. चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब हो गया विदाउट टचिंग. वो टचिंग था कंडक्शन. दिस इज सेड टू बी द विदाउट टचिंग. सो दिस इज विदाउट टचिंग. सपोज दिस इज स्फीयर A. दिस इज स्फीयर A. यहां पे नेगेटिव चार्ज हो गया. सपोज कोई भी चार्ज आप दे दो, पॉजिटिव नेगेटिव. हियर इज द नेगेटिव चार्ज. एंड इफ यू प्लेस एनी सिस्टम, यहां पे कोई एक सिस्टम या एक कोई ऑब्जेक्ट बॉडी रख दो. दिस इज सिस्टम B. अब ये बताइए इस सिस्टम, ये क्या, ये न्यूट्रल है.
न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन की बात करें, सपोज इफ वी टॉक अबाउट द एटम, एटम में क्या होता है, व्हाट इज एन एटम? एटम कंसिस्ट ऑफ द नेगेटिव इज द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन इट्स ऑर्बिट, दिस इज ऑर्बिट, इसके ऑर्बिट पे चक्कर लगाता है, एंड दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, जिसमें पॉजिटिव क्या हो गया, प्रोटॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन इज द मूविंग इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, कुछ सारे ऑर्बिट है, यहां से इलेक्ट्रॉन या तो जंप कर जाएगा या आ जाएगा, यही होता है। तो अगर एटम, ये एटम में टोटल चार्ज कितना है बताइए, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 1 प्रोटॉन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टोटल चार्ज ऑफ द एटम? टोटल चार्ज न्यूट्रल है ये, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, तो नो चार्ज, नो चार्ज, नो चार्ज का मतलब देयर आर इक्वल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द नंबर ऑफ द प्रोटॉन। जैसे ही इसके पास लाओगे, ये यहां पे क्या है, न्यूट्रल है, नो चार्ज है, नो चार्ज है, अनचार्ज हो गया, या तो वेदर वी कैन से अनचार्ज्ड, इट इज अनचार्ज। जैसे ही इसके ये पास में आया, तो इसके इफेक्ट से यहां पर क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जैसे ये न्यूट्रल हो गया, नो चार्ज हो गया, ये एटम में प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, हेयर इज द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दिस इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन इट्स ऑर्बिट, so here is the, but total number of the charge of complete atom is neutral, it is no charge, so same thing is there are the equal number of electron and proton, but there is uncharged, अनचार्ज होने में जैसे ही आए तो इसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में अंदर होंगे, तो इसके कारण ये नेगेटिव है, नेगेटिव विच इज नियर टू दिस एंड, इस एंड के पास है, इस एंड के पास है, तो नेगेटिव के ऑपोजिट साइड में 1 2 3 4 4 है, तो 4 पॉजिटिव आ जाएगा, और इधर इलेक्ट्रॉन को रिपल मारेगा, अट्रैक्ट तो नहीं, रिपल मारेगा, तो इलेक्ट्रॉन किधर होगा, देयर, हियर इज द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो कहेगा उधर जाओ, भागो 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 उधर, तो ये क्या होगा, अवे, तो नेगेटिव इज अवे, इट इज नेगेटिव चार्जेस अवे फ्रॉम द नेगेटिव, एंड पॉजिटिव हो गया, बट टोटल चार्ज कितना हो गया, 1 2 3 4 1 2, न्यूट्रल हो गया, तो क्या हो गया, इट इज न्यूट्रल, है तो न्यूट्रल ही है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे इसको हटा दो, बट इससे क्या होगा, चार्जेस अपीयर एट इट्स एंड, इसके एंड में चार्जेस अपीयर्स हो जाएंगे, राइट, चार्जेस अपीयर हो गए, क्लियर। तो ये बन गया न्यूट्रल से इधर, इसमें अब क्या करोगे आप, इसमें अगर एक और बॉडी को इसमें से टच करा दो जो अनचार्ज्ड है, अनचार्ज्ड मतलब कि अगर यहां पर से एक और आपने बॉडी सी ले ली विच इज अनचार्ज्ड, बॉडी सी विच इज अनचार्ज्ड, बॉडी सी यहां पे टच करा दिया, दिस इज बॉडी सी, राइट, और सिस्टम सी और ऑब्जेक्ट सी, इट इज सी पार्ट, सी पार्ट क्या कर लिया, बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टर ए, कंडक्टर ए क्या करेगा, ये इसमें चार्जेस अपीयर कर देगा, तो ये इसके पास बंधा रहेगा, कहेगा तुम नहीं जाओगे, तुम मेरे पास ही रहोगे, ये प्लस और माइनस यहां से इसको इसके पास रहेगा, और जैसे ही आएगा तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे दिस साइड इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देंगे, राइट, तो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसको क्या हो जाएगा, दिस इज फर्स्ट स्टेप, एंड द सेकेंड स्टेप इज, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इसमें सेकेंड स्टेप, सेपरेट सिस्टम बी फ्रॉम ए सॉरी सिस्टम सी फ्रॉम ए, सिस्टम सी से फ्रॉम बी, सी से बी को सेपरेट करेंगे, देन हियर इज द नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4 नेगेटिव चार्ज, एंड हियर इज द सिस्टम ए, सिस्टम ए में पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो सी क्या करेगा, इधर सेपरेट कर दोगे, सेपरेट कर दोगे तो क्या बचेगा, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव लेके चला गया, लेकिन इसके पॉजिटिव में इस एंड पे रहेगा, क्लियर, इस तरह से इसको कर सकते हो आप। तो ये क्या हो गया, चार्जिंग बाय इंडक्शन हो गया, इसको नोट करना हो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, this is B and this is C point, clear, इससे ये नेगेटिव लेके चला जाएगा,
तो ये क्या होगा, इसका पॉजिटिव इसके एंड पर हुआ तो ये पूरे में पॉजिटिव हो गया। क्लियर। नाउ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, नेक्स्ट हेडिंग इज द, ये विदाउट टचिंग वाला हो गया, चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन। चार्जिंग, और इसको कैसे कर सकते हो, एक और तरीका है इसका, वेदर दिस वन, अभी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से पहले एक और बताना है आपको, या तो ये हो सकता है वेदर वी कैन से, वेदर वी कैन डू अनदर मेथड आल्सो। नाउ सपोज, और करके, और अगर सपोज यहां पे पॉजिटिव ले लिया, एंड हेयर इज द सिस्टम, सिस्टम अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें ए सिस्टम है जो इसके पास रहा, इट इज नियर, वेरी नियर, इसके क्लोज कर दिया, इट इज वेरी क्लोज, बी, ए इज वेरी क्लोज टू द बी और बी इज वेरी क्लोज टू द ए। सो यहां पर अगर दिस इज पॉजिटिव तो ये क्या होगा, 1 2 3 4, प्लस और प्लस रिपल करेगा, 1 2 3 4, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, राइट, दिस इज पॉजिटिव। नाउ अगर इसमें यहां पे अर्थिंग कर दो इसको, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड इज अर्थिंग, अर्थिंग ले लो, if system B is, if system B is connected to the earth, अर्थ में क्या होता है, देयर इज द ओशियन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द अर्थ, तो अर्थ स्टेप सेकंड, दिस इज स्टेप फर्स्ट एंड दिस इज स्टेप सेकंड, दिस इज 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट, this is A and there is the B and 1 2 3 4, so here यहां से क्या हो गया, अर्थिंग कर दोगे, अर्थ, अर्थिंग, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, हेयर इज द दिस, तो इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन, तो जिससे इसको क्या होगा, इतना पार्ट हटने लगेगा तो ये आ जाएगा, इट इज द अर्थिंग, तो ये अर्थ होगा जिससे यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। क्लियर, हियर इज द इलेक्ट्रॉन, हियर इज द इलेक्ट्रॉन, राइट, तो ये हो गया, इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, ये इधर का पार्ट इधर सेपरेट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन से इधर चला जाएगा पॉजिटिव, तो ये पार्ट इससे बंधा रहेगा, राइट, सो दिस एंड विच इज बाउंड विद द एंड ऑफ द कंडक्टर ए, so it is the charging by the without touching, without touching means charging by the induction. So now next heading is the charging by the friction, right, so next heading is charging by the friction. friction क्या होता है, friction कैसे होगा, कौन कैसे क्या मेथड आता है इसका, third part is the charging by the friction. So here चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब होता है कि रबिंग करना, यानी रबिंग, रबिंग है किसी चीज को रगड़ते हो, रब करते हो, कुट 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 ऐसे, राइट, तो इसमें रबिंग में क्या बनेगा, रबिंग से हीटिंग होगी, सपोज देयर इज द कंडक्टर ए ऑफ द सेम साइज एंड देयर इज द अनदर कंडक्टर of B of the same size, so here there is the rubbing. rubbing के कारण क्या होगा, जब आप इसको रब करोगे, रब करने में क्या होगा, there is the heat is developed, heat develop होगा रबिंग में, रब करोगे काइनेटिक एनर्जी होगी, ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी there is the heat energy can also be said to be the thermal energy, heat energy को ही क्या बोलोगे, थर्मल एनर्जी, जो हीट के कारण होती है। तो रबिंग में क्या होता है, यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे एटम्स होते हैं, देयर आर द नंबर ऑफ द एटम्स, तो एटम्स क्या होंगे, रब से हीटअप होंगे, हीटअप से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो किसी भी एक में नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरे में पॉजिटिव होगा। तो चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन क्या होता है, रबिंग के कारण होता है, ये किस केस की बात है, ये इंसुलेटर में होता है, यानी कि फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन टेक प्लेस इन द इंसुलेटर,
चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन टेक प्लेस इन द इंसुलेटर। कोई भी दो इंसुलेटर, जैसे कि बलून की बात करते हो, बलून को रब करते हो अपनी बॉडी से, तो बलून को अगर आप क्या कर रहे हो कि दीवार में चिपकाओगे तो वो चिपक जाएगा आफ्टर रबिंग। तो ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिसके कारण क्या होता है उसमें इट गेट्स चार्ज, राइट। तो उसमें रबिंग में होता है, रबिंग के कारण क्या होता है, एक में क्या बनेगा, वन इज किसी एक में नेगेटिव चार्ज होगा एंड सेकेंड में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। सो देयर इज द दो पॉइंट इसमें होते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से इलेक्ट्रॉन जंप कर गए, इधर आ गए, राइट, तो इलेक्ट्रॉन इसमें चले आए तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। तो इसका क्या हो गया कि दो पॉइंट होते हैं, फर्स्ट इज द बाय रबिंग ड्यू टू द फ्रिक्शन देयर इज द ट्रांसफर, देयर इज द ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है ऑन द रबिंग। क्या हो रहा है, अगर न्यूट्रल है तो ये इसको रगड़ोगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये ऑलरेडी गिवन द एग्जांपल ऑफ द बलून को रब करोगे तो उसमें चार्जिंग होगा। इंसुलेटर हो गया, रबड़ का बना है, जैसे ही उसको दीवार में चिपकाओगे तो चिपक जाएगा बलून फॉर सम टाइम, तो थोड़ी देर के लिए चार्ज होता है। इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर में होता है, तो ये जैसे ही रब करोगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इसमें नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन इधर है, तो पॉजिटिव बचेगा इसमें, पॉजिटिव बचे, देयर इज द ट्रांसफर ऑफ द चार्ज। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज देयर इज ऑल्सो ट्रांसफर ऑफ चार्ज के बाद क्या, मास का भी ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ मास, मास का भी ट्रांसफर हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर नहीं था, इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो इधर खाली हो गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जब इसमें आएगा तो इसका मास क्या होगा, इसका मास इंक्रीज होगा और उसका मास डिक्रीज होगा, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन हटा, इंक्रीज ऊपर की डायरेक्शन लगा दी, इंक्रीज हो गया, एंड इसका मास क्या होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी और सिस्टम है, सिस्टम बी, इट डिक्रीजेस, इसमें डिक्रीज होगा। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन तीन वेज थे, पहला क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन, दूसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन, थर्ड इज द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन रबिंग के कारण होता है, जब उसको रब करते हो तो उसमें हीट होती है, हीट के कारण थर्मल एनर्जी होती है। तो चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन टेक प्लेस इन द इंसुलेटर आल्सो, देयर आर द टू इंसुलेशन, इफ वी रब इट, गुर 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 गुर, इसको अगर रब करते हो तो क्या होता है, रबिंग करने पर, रब करने पर देयर इज द ट्रांसफर ऑफ द ड्यू टू द हीट, या तो इधर से इधर या इधर से इधर जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन द टेंडेंसी ऑफ द मटेरियल, या अपने मटेरियल की टेंडेंसी पर होता है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन इधर आया, पहले यहां कुछ नहीं था, इलेक्ट्रॉन आया तो इसका मास बढ़ गया, इसका मास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इतने 1 to 4 इलेक्ट्रॉन, तो इधर क्या हो गया, लेस हो गया, मास इंक्रीज हो रहा है, एरो ऊपर बना दिया, डिक्रीज हो रहा है नीचे। सो देयर आर द टू फैक्टर बाय द चार्जिंग बाय द रबिंग और द फ्रिक्शन। फर्स्ट इज द ट्रांसफर ऑफ द चार्ज, हो रहा है चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, सेकंड हो रहा है ट्रांसफर ऑफ द मास, राइट। सो इफ यू वांट देन टेक द स्क्रीनशॉट, इसको नोट कर लो। तो आपको तीन बताया, सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज बताया, टाइप्स ऑफ द चार्जेस बताया, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, एंड यू हैव गॉट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, Q is equal to NE, you have got two numerical, and second was the conservation of the charge, addition of the charge. फिर way to charge you have got the charging by the conduction, second is the charging by induction, third is the charging by the friction, right? So आप लोग को कमेंट करना है, अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन कमेंट ऑल्सो, और स्लोली आप लोगों को PDF भी मिलेगी, धीरे धीरे मटेरियल भी मिलेगा, और इसके बाद यू विल बी गेटिंग द वेबसाइट भी आने वाली है जल्दी, हो सकता है कुछ दिन पहले आए या थोड़ा और टाइम लग जाए, तो अभी मैं कोई इस बात का प्रोमिस नहीं कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच।